Yes, students, let me start the next chapter. The next chapter is sports and nutrition for class 12th. Sports and nutrition. As the chapter, we know that what are the importance of nutrition in sports and what proportion we take our food or our diet in for the sports. Firstly, in this chapter, the topic is balanced diet. According to the word balanced means equal proportion, means a diet that is taken in a equal percentage, equal ratio. जैसे कि आई टेक एग्जाम्पल फॉर हियर, कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो एक, फैट का रेशो एक और प्रोटीन का रेशो दो। मीन्स इन तीनों का रेशो यदि ये सेम रहता है, ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट मानी जाती है। इन दिस नोट्स यू कैन नोट सी व्हाट आर द proportion, but actual proportion is कि if you take a balanced diet, if you want to take a balanced diet, so you have to learn that how many products of carbohydrate there is one ratio, फैट का भी वन एंड प्रोटीन का टू। मीन्स ये एक रेशो बनाना है आपको बैलेंस डाइट के रूप में। सो आगे इसमें अपने एक चीज़ नोट करेंगे कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर द प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। यदि उन तीनों को मिला देंगे, उन तीनों को मिलाएंगे, मिलाने पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से अमाउंट है, कितना ज़्यादा खाना चाहिए और कितना कम खाना चाहिए, ठीक है। सो ये जो चीज़ आपने पढ़ी है, प्रोटीन है जो एक्सेट्रा, जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स है आप लेते हो बैलेंसिंग में इक्वल प्रोपोर्शन में, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। अ डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो आपके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे कि मैंने पहले बोला भी था, कॉल्ड बैलेंस डाइट। सो स्टूडेंट्स हियर, protein, carbohydrate, fats and water are the micronutrients and macronutrients, and vitamins, minerals and water are the micronutrients. So what are the micro we learn about it later. So this is the carbohydrate balanced diet, and I'll repeat it again. The meaning of balanced diet is take a diet in a fixed proportion for growth our body, for growth our for take a limitation for like carbohydrates, fats and protein in the ratio with 1:2. So next topic is nutrition. Nutrition is the process to obtain and consume food or breaking down food and substances taken by the mouth to use energy for energy in the body. Means that substance those are taken by us, those are eaten by us, that is make energy in our body. And how to use this energy, this is told the nutrients. Means what are the goals of nutrients. The goals of nutrients say hydrated, means how to use the nutrients in our body and provide immediate fuel. मीन्स यदि आप वो फूड लेते हो, अपनी बॉडी के अंदर एक फ्यूल जैसा होता है, जैसे बाइक्स में, कार्स में अपने फ्यूल डाल देते हैं। सो वो हाइड्रेटेड होने के बाद या उनको एनर्जी मिलने के बाद वो क्या होते हैं, वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। सो सेम एज यदि फ्यूल डालोगे तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस भी है, प्रॉपर उसमें फ्यूल डालते रहेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, उसको यूज़ प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। सो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगी, बूस्ट होएगी। और ऑब्वियस है परफॉर्मेंस बूस्ट होएगी, उसका यूटिलाइजेशन मैंने अभी बोला था, जैसे प्रॉपर वे से यूटिलाइज करते जाओगे तो उसका एनर्जी है वो भी प्रिजर्व होती जाएगी एंड रिकवरी है वो भी अर्लियर होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, let's come on the most important and main topic of this chapter, sports nutrition.
It is the study of the practice of nutrition and diet as it is related to the athletic performance. It considered with the type and quantity of fluid acid टेकन बाय द एन एथलीट, मतलब कौन कौन सा जो फूड है वो कितनी कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, और कौन से फूड है वो जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए, कौन से फूड है वो स्मॉल अकाउंट में चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स पहला आ जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट for our body, there are carbohydrates, proteins, fats and water for the these are the components, these components are required for a maximum amount in our body. So in macronutrients, carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen, these four are substances, chemical substances are added for the boosting our energy, and they for मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो चारों कंपोनेंट है ये लार्ज अमाउंट में अपनी बॉडी को चाहिए होते हैं। एंड वी read briefly about carbohydrate, protein and fats and water, also for water later. Firstly we want to know about the माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो जहाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए, सो micronutrients students, the micronutrients required for in a small amount, they are required for in a small amount, like macro माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जैसे विटामिन्स आ जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है। दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ही कम अमाउंट में अपनी बॉडी को चाहिए होते हैं, जैसे क्लोरीन, आयरन, ठीक है, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, सोडियम, कॉपर एंड मोलिबेडेनम एंड निकल। सो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के अंदर अपनों ने पढ़ा मैक्रो के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, माइक्रो के अंदर विटामिन और मिनरल। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टार्ट द ब्रीफली अबाउट दीज कंटेंट्स। नॉन न्यूट्रिएंट्स